नमस्कार, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ज़ॉम्बी अटैक। एक गांव में 17 साल की लड़की एक कॉन्वेंट में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। काफी तेज बच्ची थी, हर बार क्लास में टॉप करती थी। पर एक दिन उस कॉन्वेंट ने उस बच्ची के माँ बाप की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उस लड़की को ईसाई में बदलने का मजबूर किया था। जब वो बच्ची ने उस अमानवीय प्रपोजल को इनकार कर दिया था, तब उसको पोंगल हॉलीडेज के वक्त बिना घर भेजे उसे शौचालय क्लीन कराए, कपड़े धुलवाए, जितना ह्यूमिलिएट करना था उतना ह्यूमिलिएट किए थे। नाराज बच्ची उस असहाय स्थिति में खुद की जान ले ली। अब आप वो लड़की के जगह अपने बच्चों को या भाई बहनों को इमेजिन कर लीजिए। बहुत डर और दुख होगा ना। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु में हुआ था। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था। अपना धर्म बदलो या मर जाओ, ये मिशनरी वाले भी उनसे कुछ कम नहीं है। अब तक आप एक अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हम धर्मांतरण के खिलाफ क्यों लड़े। हंसने वाली बात यह है कि ये विदेशी मिशनरीज हो या देसी, हमेशा क्रिश्चियनिटी को हिंदू समाज में प्यार और दान के रूप में ही परिचय कर रहे हैं। तो हम हिंदू भी इनके द्वारा किए गए धर्मांतरण के ऊपर इतना भाव नहीं देते हैं, ना ही हम इन्हें खतरनाक समझते हैं, क्योंकि एक, हमें हमारे इतिहास के पुस्तकों में आक्रमणकारियों को हीरो दिखाया, और दूसरा, ये बाइबल व्यापारी दान के नाम पर धर्मांतरण करते हैं। तो कई सारे मासूम हिंदू इनके जाल में फंस जाते हैं। पास्टरों का कहना है कि धर्म बदलना उस इंसान का पर्सनल चीज है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मास्क लगाना मेरा पर्सनल है, पर गवर्नमेंट मास्क को कंपलसरी क्यों कर दी? क्योंकि अगर मैं कोरोना से इन्फेक्ट हो गई तो मेरे वजह से कई सारे आसपास रहने वाले लोग इन्फेक्ट होंगे, जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। वैसे ही जब एक बंदा धर्म बदलकर क्रिश्चियनिटी में जाकर कल से उनका काला किताब पढ़कर मेरे भगवान को गाली देकर मंदिरें तोड़कर और भी लोगों को इन्फेक्ट करने तैयार होता है, तो वो पर्सनल चीज बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इन वीडियो क्लिप्स को देख लीजिए। ഹല്ലേലൂയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉത്തരാഞ്ചലിലെ ഹൈന്ദവരുടെ പുണ്യഭൂമിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഋഷികേശിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഋഷികേശിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ തിരിച്ചോർ ഒഴുകപ്പെടുവാൻ ഈ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം മുഴുവൻ എതിർ പൂജകളാലും എതിർ പ്രാർത്ഥനകളും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതനാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ ദേശത്തിന്റെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷനെ തടയുന്ന മഹാസർപ്പം കർത്താവിന്റെ വാളിനാൽ കുത്തിപ്പിളർക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഋഷികേശിന്റെ മണ്ണ് കർത്താവിന്റെ അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിനായി ഈ ദേശം പിടിക്കപ്പെടുവാൻ വരും നാളുകളിൽ ഇവിടെ വിശ്വാസം വളർന്ന് ജനം കൂട്ടം കൂട്ടമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഏകരക്ഷകനും കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಈಗ ನಾನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬರುವ ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡೋದೆಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ದೇವದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'll make a pastor to come and stay there so that he will continue that. After everyone who had accepted Christ as a Savior, and when they remove the tree god or stone god, then I call as a Christ village. In some villages I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads, and I was so happy. From that time we made as Christ village. Christ village means its whole village had accepted Christ. In that way we had made many hundreds of Christ villages, and still we are trying to do our best. उस लास्ट वीडियो को एक और बार ध्यान से सुनिए। After everyone who had accepted Christ as a Savior, and when they remove the tree god or stone god, then I call as a Christ village. In some villages I had hit the stones and trees with my leg
in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads, and I was so happy. From that time, we made as Christ Village. Christ Village means it's whole village had accepted Christ. इसमें पास्टर प्रवीण चक्रवर्ती कह रहा था कि जैसे उस गांव में सबका धर्मांतरण हो जाता है, तब उस गांव में कोई भगवान की मूर्ति या मंदिर नहीं रहेगी। वही नहीं, उसके द्वारा कन्वर्ट हुए लोग भी उन मूर्तियों को पैर से लात मारकर फेंक देंगे। अब बताइए, ये पर्सनल इश्यू कहां से हुआ? पास्टर प्रवीण या देवदास देसाई जैसे लोगों को देखकर ये मत समझना कि इतने सारे ईसाइयों में से वो अकेले ही तो हैं। नहीं, एक पास्टर प्रवीण या देवदास देसाई अपना इस इन्फेक्शन को गांव में, शहर में और 100 लोगों को इन्फेक्ट करके आते हैं। ये एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों का मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इनके आइडियोलॉजी में है, इनके किताब में है। मूर्ति पूजकों को नीचा दिखाना और उनके विश्वासों को अपमान करना। चलिए एक बात बताती हूं, हम सनातनी या मूर्ति पूजक भारत में मेजॉरिटी हैं, पर हम काफी सेक्युलर हैं। अन्य धर्म के लोग यहाँ समृद्ध हैं। कैसे? क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी वसुदैव कुटुंबकम है। वही हम बाइबल की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, बाइबल में मूर्ति पूजा की तुलना यौन अनैतिकता और अशुद्धता से किया गया है और हमारे भगवानों को शैतान कहा गया है। तो कहाँ है इसमें प्यार? और क्या आपको लगता है ऐसी एक सोच रखने वाले लोग, ऐसी नफरत भरी एक किताब का अनुसरण करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे मंदिरों को ऐਵੇਂ छोड़ देंगे? 2 साल पहले तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन मिशनरी ने भारत माता की मूर्ति को यह कहकर ढक दिया था कि वह मूर्ति उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। 2020 में कविता नाम की एक महिला को अपने पड़ोसी ईसाइयों ने अपने घर में जोर से घंटी बजाने के वजह से उस महिला के घर में घुसकर पीटे थे। तो यहाँ पर हमें धर्मांतरण 2 चीजें स्पष्ट करती हैं। पहला, हम मूर्ति पूजकों के प्रति इंटॉलरेंस और दूसरा, देश के प्रति नफरत। क्या आप उस दिन तक इंतजार करते रहेंगे जब यीशु जैसा कोई पड़ोसी अपने घर में पूजा करने पर आपका सर फोड़े, गांव या शहर में हमारे भगवान की मूर्तियां तोड़े? हम हिंदुओं की खामोशी के वजह से ही आज एक सनातनी बच्ची इन मिशनरियों का शिकार बन गई। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आगे भी ऐसा कुछ हो तो आज आपको धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाना ही होगा। धर्मांतरण कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, वो सामाजिक मुद्दा है। शिव शक्ति ऐसे करार व्यूहों को चलाने वाले बाइबल व्यापारियों को और मिशनरीज को दक्षिण भारत में सबक सिखाया है और अब उत्तर भारत में अपना पहला कदम रख रही है। कोई भी व्यक्ति या मिशनरी जो अभी तक सनातन धर्म के ऊपर और हमारे भगवानों के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके रोज की रोटी कमा रहे हैं, मासूम हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से एक ही मैसेज है, पैकअप। क्योंकि हर वेडनेसडे और फ्राइडे ऐसे लोगों को पेलने के लिए आ रही हूँ। तब तक हमारे सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।